Assalamu alaikum, dear students of class 10th. My dear students, we are going to discuss the lecture third of your chapter. That's we are dealing with the chapter magnetic effects of electric current. And so far we had discussed about the magnetism. We discussed about the magnetic field lines, properties of magnetic field lines that we have discussed in the two lectures. आज का जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर थर्ड में, ओके बेटा, it is going to be somehow important for your examination point of view. ओके, मे बी ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में. इट्स ऑल अबाउट द Orested experiment. Okay, so we are going to discuss today Orested experiment. Orested experiment, his full name was Hans Christian Orested. Hans Christian Orested. Okay, I'll tell you better. This is the scientist who gave the unification, who gave the correlationship between electricity and magnetism. He was the first scientist who gave us the relationship. That means who discovered the relationship between electricity and magnetism. That's what chapter is all about. That's the magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current मतलब गो क्या गोबर में magnetic effects of electric current गो अगर का कंडक्टर शु atmos current गसान प्रोड्यूस ये कंडक्टर हसा छु करान कम ये हसा छु डेवलप करान मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ये केम साइंटिस्टन कोर एस अंडरस्टैंड दैट वाज अरेस्टेड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इन 1820 in 1820s maz hasa korem experiment. Okay, and although this experiment is quite easy for we guys, but it was not easy for Orested. ओके उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस एक्सपेरिमेंट में एंड फाइनली ही केम टू द कंक्लूजन and he successfully came to the conclusion that it's not only the magnet who produces the magnetic field or magnetic effects around it. It's also a conductor carrying current. अगर कंडक्टर आए तथ मज गस करंट प्रोड्यूस सह हसा गसान कम सह हसा बराबर तिथे पे इफेक्ट्स करान प्रोड्यूस लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, and it was done by Hans Christian Orested through the experiment that is called as Orested experiment. So आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आप लिख भी सकते हो describe Orested experiment which led to the discovery of electromagnetism. Okay, अगर आपको concept of electromagnetism किसने start करा है तो you will just directly say it was Hans Christian Orested through his experiment Orested experiment जो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है बेटा, तो एम क्या वो तो यह इलेक्ट्रिक करंट छु प्रोड्यूस गसान अकिस कंडक्टरस मज यह प्रोड्यूस यह करान कम यह क्रिएट करान मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स मतलब यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रिएट करान मैग्नेटिक फील्ड करान मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई गसान अत पे. ठीक है, सो इसने एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंटली इसने ये वेरीफाई करा है. तो व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? इजी एक्सपेरिमेंट. ठीक है गुबन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वह एम क्या कोर दुपन एम हसा हो relationship. So we can say the first and the foremost point is this: Orested performed a simple experiment to establish the relationship between electricity and magnetism. Okay, you will write this at very first note ye कि in 1820 it was Hans Christian Orested who discovered the magnetic effects of electric current, जो आपका चैप्टर का नाम है टाइटल. ओके, और उसके बाद आप ये पॉइंट भी नोट करोगे कि Orested performed a simple experiment to establish the relationship between electricity and magnetism. ठीक है, वहीं कुछ एक्सपेरिमेंट देते हैं वो हम स्टडी करेंगे वो सको एमुन आ कंडक्टर आ क्या कर दुपन हे कंडक्टर को वायर आखनी है तो समझ कंडक्टर शु वायर मतलब एम कर वुस एम क्या कर दुपन हे बसा कर बसा अन अख वायर अख याद थे जो गुबन एम यह एक्सपेरिमेंट एम सुन. इट्स क्वाइट ईजी फॉर वी गाइज, बट इसने कैसे ये परफॉर्म किया मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा. यह हसा कर दिस इज अ वायर. ओके बेटा, एम कर सपोज दिस इज एम कर एम हसा कर एम हसा कर सप्लाई ही सप्लाइड दिस विद द सोर्स एन एक्सटर्नल सोर्स विद द बैटरी. तो आया समझ वुस गुबन एम कर लेट अस सपोज थो ये क्या वन यह हसा वन गुबन ये क्या ये रियोस्टेट. ओके, इंक्रीज और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में ये हेल्प करेगा डिवाइस. ठीक है, पत हसा कर सप्लाई विद द बैटरी.
ओके, विद अ सेल और बैटरी जो भी है, जिसको आपको पता है कि दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव दिस नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, पता सा था ये की ये दिस इज ए की, समझ है गोबर। ओके बेटा, वुचो आज वनकस की तो पाई व्हेन ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज रेयोस्टेट। ओके, लेट सपोज दिस इज ए बी, यह हसा कंडक्टर अख, तो आया समझ, यह हसा कंडक्टर अख वायर निमो, कंडक्टर इज ए वायर, स्ट्रेट वायर निम बह, दिस इज स्ट्रेट वायर हु हैज टू बी कनेक्टेड विद द बैटरी हैविंग टू टर्मिनल्स माइनस प्लस। ठीक है, वन अगर बह की क्लोज करान, की क्लोज कर मतलब गो गुबरा करंट गस में फ्लो। मगर अम क्या कोर, अम वो दोपन है बह हसा कर बह हसा अन अथ साइडस अख बिसाइड्स में, इसके एक बिसाइड्स में एक मैग्नेटिक कंपास लाऊंगा। मैग्नेटिक कंपास छो तुम पाई, मैग्नेटिक कंपास वो मे लेक्चर नंबर 2 मज, अत हसा मैग्नेटिक नीडल अत मज। मैग्नेटिक नीडल यह बराबर गसान पॉइंट, यह ऑटोमेटिकली ओब्वियसली गि पॉइंट कुकुन युथ कट मे हुस डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक डायरेक्शन आस तथ तो समझ। लेट अस सपोज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द। ओके, वुच सा गुबर अगर बह यथ पे वन इट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, यह हसा नॉर्थ पोल, यह हसा नॉर्थ, पत गो साउथ, यह गोस ईस्ट, यह गो वेस्ट, तो आया समझ। वन अगर बह अतस थो यह मैग्नेटिक कंपास, अमुक नॉर्थ गस पॉइंट टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ, यह अर्थ हुन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। सपोज वह मान वनकस सपोजिशन, यह यथ पे नॉर्थ आए तिथे पे गस मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ में पॉइंट। तो मैग्नेटिक सपोज यह हसा यथ पे, लेट अस सपोज दिस इज ए कंपास, बह साइडस थवन कंपास, याद थो बह करान इसका जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ। ठीक है गोबर, so current this is the arrow which is denoted as north pole, and south pole hasa goes tail of this magnetic needle represents the south pole, that is exactly in a point, in a direction pointing towards the north and south respectively as shown in the figure। ठीक है एज वनकस बह करान मे कोर वनकस करंट, वुच सा वनकस मे की कोरमत प्रेस कह, वनकस मे ओपन सर्किट, वनकस मे करंट गसान फ्लो कि यह अम सुन एक्सपेरिमेंट। अम वो दोपन है ये हसा मे मैग्नेटिक नीडल थो अत साइडस अत नजदीक, ये मैग्नेटिक नीडल हाव मे डिफ्लेक्शन कहें। अमुक मतलब गो ये बह आई मे ये जीरो आसे, नो डिफ्लेक्शन ऑकर्स, याद थो नो डिफ्लेक्शन ऑकर्स, सिंपल। अम वो दोपन है अत नसा गई मे डिफ्लेक्शन कहें तह। एज वन कोर अम स्टेप, ब्या स्टेप, अम क्या कोर स्टेप, ही हैज क्लोज द सर्किट, ही हैज प्रेस्ड द की। ये प्रेस की कोर, ये क्लोज गो सर्किट, ये क्लोज गो सर्किट, ये ऑलरेडी ये गई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इस कंडक्टर में व्हाट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। which सा यह तुम पाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो करंट विल बी इन लाइक दिस, करंट विल बी लाइक दिस। वन हसा गो यथ मज करंट फ्लो, मगर अत क्या अत नजदीकस में व्हाट मैग्नेटिक नीडल, याद थो कंपास, मैग्नेटिक कंपास मज मैग्नेटिक दपन एज सून एज द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यम हसा कर मूवमेंट, यथ मूवमेंट कर नीडलिश मूवमेंट कर वन फिजिक्स मज अम हसा हो डिफ्लेक्शन। क्या हो गो ये हसा मे करंट फ्लो गसान अकिस कंडक्टरस मज, अम हसा कर मैग्नेटिक नीडल यस मैग्नेटिक कंपासस मज हो, अम हो डिफ्लेक्शन, अम हो, याद थो अम हो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो या डिफ्लेक्शन यथ पे, या डिफ्लेक्शन यथ पे, तो आया समझ, या कर डिफ्लेक्ट यथ पे, या कर डिफ्लेक्ट यथ पे कर ना। ओके, अम हसा वो अमो दोपन है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। दोपन है गोडनेथ अगर मे करंट वो जीरो, दैट मीन्स ये मे प्रेस करे की क्या, एज सुन एज ये मे प्रेस के कर की अम हो डिफ्लेक्शन, देर इज अ मूवमेंट इन इट, देर इज द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। मगर गोडनेथ नहीं गोडनेथ मतलब गो ये करंट में फ्लो करन अम वो दोपन है तेल यथ मज गसान एक्स्ट्रा इफेक्ट एड। वो सा अगर ना एक्स्ट्रा इफेक्ट एड गई तेल मा हाई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन, याद थो गोबर। अम हो डिफ्लेक्शन, मगर अम हो तेल डिफ्लेक्शन ये मे प्रेस कर की, ये मे करंट करनो फ्लो ये कंडक्टरस मज। अम वो दोपन तेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इफेक्ट करान ये प्रोड्यूस कुस, यह कंडक्टर यम सह मैग्नेटिक नीडल करान डिफ्लेक्ट।
ठीक एम वो दोपन है बह कर बह वुच बह कर डायरेक्शन चेंज कत कर डायरेक्शन चेंज बह कर डायरेक्शन यथ हसा करंटस चेंज मतलब बह थो पॉजिटिव टर्मिनल वनकस हरकन नेगेटिव टर्मिनल वनकस वन वनकस करंट में पकान फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ याद थो वो गोबर वनकस मे पकान यह हसा करंट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ साउथ फ्रॉम नॉर्थ मतलब साउथ टू नॉर्थ इत पे पकान एम वो दोपन है बह कर डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज डायरेक्शन ऑफ द करंट कत पे कर चेंज तला वन गोबर कत पे कर चेंज एम कर टर्मिनल्स चेंज एम थो पॉजिटिव हरकन बोन कन थो नेगेटिव तय आवा समझ वनकस मे हरकन नेगेटिव बोन कन पॉजिटिव एम वो इत पे वो सा गोबर यह सो गोस पॉजिटिव यह सो गो नेगेटिव ओके दिस इज अ rheostat ठीक गोबर पॉजिटिव नेगेटिव वनकस गस करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी वनकस मे करंट गसान फ्लो फ्रॉम बी टू ए ठीक मगर बराबर मे पॉइंट करान यह गो नॉर्थ यह गो साउथ यह गो ईस्ट तो यह गो वेस्ट मैग्नेटिक नीडल तथ इथे पे मैग्नेटिक नीडल तथ इथे पे याद थो एज सून एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस गसान अगर सपोज मैग्नेटिक नीडल गसान डिफ्लेक्ट यथ पे टुवर्ड्स वेस्ट मतलब यथ पे मैग्नेटिक नीडल वाज लाइक दिस अगर इसने डिफ्लेक्शन ऐसे करी ऐसे मतलब को डिफ्लेक्शन ये टुवर्ड्स वेस्ट यह गो ना वेस्ट यह गई टुवर्ड्स वेस्ट when current was from B to A from south to north magnetic deflection was towards west em korium bushus daban towards west bujan agar itas aisa towards west तम वो दोपन है अगर ये बह करंट चेंज करान ये डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन तह गसान चेंज तम अगर बह करंट गसान मे फ्लो फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एम कर दोपन है अत हसा गई डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट गो देर इज डिफ्लेक्शन देर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन एज वेल कत पे ये बह करंट करान when there is a change in the direction of the current there is also change in the deflection of the magnetic needle direction of the deflection of magnetic needle ठीक गोबर ओके मगर वह क्या दोपन अगर न करंट मे फ्लो गसान कह डिफ्लेक्शन मे कहीं ठीक गोबर एज सून एज आई प्रेस द की देर इज द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल व्हाट इज दैट डिफ्लेक्शन कत पे प्रोड्यूस गसान एम वो दोपन है तेल यह मैग्नेटिक नीडल यह गसान डिफ्लेक्टेड तेली ये अत पे अमिस फोर्स अप्लाई गि obviously कहीं फोर्स गसे अप्लाई यह विदाउट डिफ्लेक्शन as was seen in the first case when no current was flowing there was no deflection in the magnetic needle ठीक as soon as the key is pressed there is a deflection in the magnetic needle of magnetic compass what does he tem kur analyze what does he analyzed एम वो दोपन है तेल गसान यह ए बी कर यह कंडक्टर इस बी ए या ए बी कंडक्टर या वायर अत मज हसा प्रोड्यूस गसान फील्ड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड अत मज गसान मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करान सो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करान कत पे मैग्नेटिक सह अप्लाई करान फोर्स कत पे मैग्नेटिक नीडल सह फोर्स करान एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंडक्टर by this magnetic field सह करान ये मैग्नेटिक फील्डस मज आव ना यह कंपास इन द विसिनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये आव ना यह करान सह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करान फोर्स कत पे यथ पे मैग्नेटिक कंपासस पे मैग्नेटिक कंपास गसान डिफ्लेक्शन तय आवा समझ गो अमुक मतलब गो यह ना अमिस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सो ब्या इफेक्ट दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज व्हाट चैप्टर इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुचस इलेक्ट्रिक करंट योर पकान इलेक्ट्रिक करंट तेल इलेक्ट्रिक करंट सह गई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट ये मैग्नेटिक नीडल गई डिफ्लेक्ट तमें मतलब गो यथ मज सही कह चीज गसान प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ये बह करंट प्रोड्यूस करान तम एक्स्ट्रा गसान तम एक्स्ट्रा गसान ये मैग्नेटिक नीडलस मज डिफ्लेक्शन दैट एक्स्ट्रा इज मैग्नेटिक effect so that is how Hans Christian came to the conclusion and when दोपन है अत हसा गसान अत हसा एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट गसान प्रोड्यूस सो मैग्नेटिक इफेक्ट हसा करान फोर्स अप्लाई कत पे मैग्नेटिक नीडल्स पे सो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट गसान वेदर इन दैट डायरेक्शन you will come to know in the later part कि कह परवाह डायरेक्शन तह करो असल पे अंडरस्टैंड लेकिन what did he conclude एम वो दोपन है the deflection of needle was in opposite direction the deflection of the needle was in opposite direction on reversing the direction of the
this current. And when दोपन हे this observation this पत लेको यथ पट these observations led experiment led Oersted to explain that there must be some magnetic field around this current carrying wire which deflected the this needle, as magnetic needle could be deflected only by another magnetic field. तो यह समझ वो magnetic needle मा गैस पाने deflect एमिस अगर magnetic needle कैसे एमिस अगर magnetic field ब्याख magnetic field एमिस produce गैस सु magnetic field करे एमिस force apply यत पे हज needle पे am needles मस ये deflection हाँ. So finally he came to the conclusion दोपन है yes electricity relationship electricity and magnetism, that is what he Oersted experiment is the unification of electricity and magnetism. He gave the relationship between electricity and magnetism. तो आया समझ. और he established the relationship between electricity and magnetism कुत पड़ दोपन है यह हसा magnetic needle करन कम बुछ change करन current ये गसान बुछ direction of the current change गसान ये deflection गसान reverse orders मस ये क्या दलील दोपन है तेल हसा magnetic field गसान produce कैस कि deflection गस तेली ये एमिस ब्याक magnetic field apply करे सो magnetic field करे एमिस force so force सिद गस एमिस magnetic needle deflection. वहीं रुत सवाल वहीं क्वेश्चन सर deflection कत पड़ गस direction of the deflection कत पड़ या है कि towards west गस या towards east which is ये needle suppose ये थजो याद तो ये suppose needle चीज पड़ needle hun north pole shi ke south pole shi ke needle is obviously needle के यहाँ यथ पड़ deflect मतलब towards left or towards right. Towards left goes towards west. Okay beta, let me just sort it out. Okay, so deflection might maybe towards the west. You get deflect which the deflect कुछ पट करिए you get deflect यथ पट you get needle you get deflect यथ पट towards west यहाँ get deflect towards east. Okay, so direction of the deflection of the magnetic needle कुछ पट करो इस पत हो एम तम खतर छे ज़ rules कुछ पट छे ज़ rules गॉडनिक rule छे Ampere's swimming rule याद थे जो गॉडनिक rule क्या छे Ampere's swimming rule याद थे जो that Ampere's swimming rule तिम क्या छे परान सो rule क्या छे परन in order to study out the direction of the deflection of magnetic needle समझ है यह Ampere's याद थे जो Ampere's swimming rule ये swimming rule हाँ दोयम rule छे snow rule याद थे जो गुबन यम क्या छेस रूल पारें यम छ अवय मूजब पारें कि डिफ्लेक्शन कथ डायरेक्शन मज छ इस करो एनालाइज डिफ्लेक्शन कथ पटी वुछ गॉडनिक रूल छ एम्पियर स्विमिंग रूल ये स्विमिंग रूल अमिक मतलब ये थोड़ा रिलेटेड टू द स्विमिंग. ओके ये छ दपान है एम्पियर स्विमिंग रूल अगर हसा सपोज चसु बॉडी आ ओके दिस इज अ बॉडी ओके he swims in a river or something else. Okay, in such a way let us suppose this is his feet and this is the head of this. Okay beta, this is the head of issue. Obviously you should swim karan it swims in the direction of the current it swims in the direction of the current है from bottom to top या top to bottom. Suppose गॉडनिकिस केसस में from B to A याद थे जो from B to A. Okay, go atheas suppose a body is swimming in the direction of the current in the direction of the such that the electric current enters through his feet and leaves through his head. याद थे जो Ampere swimming rule क्या है Ampere's swimming rule chumanan suppose consider a body who is swimming in the direction of the current such that the current enters through his feet and leaves through his head तया हुआ समझ अमुक मतलब को his face is pointing towards the direction of the current his face is always turns towards the direction of the तया हुआ समझ वहीं क्या छु वनन दपन है वहीं छु वुचन डिफ्लेक्शन छु गसान दपन है हिज अगर हसा करंट गसि फ्लो फ्रॉम B to A मतलब गो यपरी में स्विमिंग तरान स्विमिंग इन द सेंस कि current is entering through the feet and leaves through the head through his head, then the deflection is always towards his left hand. Good deflection gets towards the left hand.
तय आवा समझ वुस गोबर ऐत वुच तला वनियो वही वनकस डिफ्लेक्शन कत पे गि वनकस स्विम करान ये फ्रॉम बी टू ए that means deflection of the needle is towards deflection of the needle will be towards left yith point समझ है यह अगर हसा अख person to swim karan in the direction of the current such that his current enters through the feet and leaves through his head, then the deflection is always towards the left मतलब go towards the left hand. वनकस डिफ्लेक्शन गो वनकस करंट करान वनकस स्विम करान इन लाइक दिस डिफ्लेक्शन कत पे डिफ्लेक्शन ये गो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट गो नीडल गैस डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट समझ वन दोयम केस में फ्रॉम ये दोयम केस में वनकस याद थे दोयम केस में ए बी वनकस में फ्रॉम ए टू बी वनकस में फ्रॉम ए टू तमिक मतलब गो यह में वनकस स्विम करान ये यह स्विम करान में इत पे तय आवा समझ दैट इज कंसिडर ए क्वेश्चन स्टेटमेंट इत पे कंसिडर ए पर्सन स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट गो वनकस करंट फ्लो गसान थ्रू हिज फीट तय आवा समझ थ्रू हिज सो इसका जो राइट हैंड होगा वो राइट हैंड होगा ये एंड लेफ्ट हैंड होगा ये समझे ये याद थे जो राइट हैंड होगा ऐसे तो लेफ्ट हैंड होगा ये ना वनकस फ्रॉम स्विम ऐसे करेगा तो राइट हैंड ऐसे होगा लेफ्ट हैंड ऐसे होगा एंड हिज हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट मीन्स टुवर्ड्स बी ठीक है व्हाट इज द स्टेटमेंट डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड नॉट राइट लेफ्ट हैंड पे वनकस ये गो डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस डिफ्लेक्शन विल बी लाइक तो यह समझ गो डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस वुच समझ गो बर वन समझ क्या डिफ्लेक्शन को यह फ्रॉम ए टू बी गसान को डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस like just मतलब को towards east this is Ampere's swimming rule आप थोड़ा सा ये रफली अपने रफ पे ये अच्छे से स्टडी करोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज दिस Ampere's दिस स्विमिंग रूल एंड सेकंड रूल जो हमने डिस्कस करा था दैट इज द स्नो रूल क्या गो वुच गोबर स्नो रूल क्या गो वुच स्नो क्या बह वन ये वुच यह SNOW स्नो what is if current flows from south to north if current flows from south to north then the north pole of needle deflects towards west which this is the snow rule क्या वन if the current flows from south to north then the north pole of the needle will always deflect towards the west याद थे जो गोबर तल हस नी ये किए इधर ब्याक रूल दैट इज द स्नो रूल here the current is flowing from south to north from B to A. This is the south to north. Then the north pole of the needle, where is the north pole of the needle? Here is the north pole of the needle, that will always deflect towards west. That means towards west. Are you getting me? Towards west. Yaad the jo if the deflection is towards the if the deflection is towards the if the current is flowing from south to north, then the north pole of the magnet is deflected towards west. That is all about the snow rule. तो आवा समझ गो स्नो रूल क्या वन स्नो रूल वन अगर हसा करंट गि फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जिस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल यह गि हमेशा डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट okay and these were the two rules that was the Ampere's swimming rule and the snow rule which depicts the direction of the deflection of the magnetic needle. Okay, and it was all about the Oersted experiment who successfully in 1821 established the relationship between electricity and magnetism. Okay, and इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हमने स्टडी करना है पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कत पे प्रोड्यूस गसान एकस बार एकस कंडक्टरस मज कत पे वनकस पाई मैग्नेटिक फील्ड तुहस डायरेक्शन कत पे
अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ओके, उसके लिए रूल भी आएगा, वो हमने स्टडी करना है। उसके बाद हमने एक लूप, एक सर्कुलर लूप देखनी है, उसमें उसमें स्टडी आउट करना है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने सॉलिनॉइड का स्टडी करना है। दिस इज ऑल, दिस थ्री कॉन्सेप्ट जो आप स्टडी करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो so it was all about today's topic in the lecture third we discussed about the Oersted experiment और डिफ्लेक्शन कैसे होती है मैग्नेट में। तो वो उसके लिए हमने दो रूल स्टडी किए हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल and snow rule. Okay, so it was all about the Oersted experiment.